Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the online lecture of Mathematics Grade 4, Unit number 5, Fractions, Lecture number 1. And in this chapter we will cover the pages from 79 till 83. First of all students, open your maths books and your maths classwork notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lecture, first of all, I will tell you about like and unlike fractions. As students, you already know about the fractions. What are the fractions? In fraction, you have a numerator and you have a denominator. So, उसके बाद हमारे पास अब आ जाएगी like and unlike fractions. The fractions with the same denominators are called like fractions. वो fractions जिनमें denominator एक जैसे होंगे तो वो हमारे पास क्या fractions होंगी? Like fractions. For example, the fractions 2 over 6 and 4 over 6 have the same denominator. अगर आप इनके denominators देखें तो दोनों क्या है हमारे पास same है. So it's mean these are the like fractions. The same number of equal parts into which the whole is divided. इसका मतलब है कि ये जो fraction है ये भी 6 parts में divide हुई है और ये वाली fraction भी 6 parts में divide हुई है. We call it a common denominator. हम इसे कह सकते हैं कि ये common denominator है दोनों fractions में, क्योंकि दोनों का जो चीज सेम होगी वो हमारे पास क्या होगी? कॉमन. We can also say that they are like fractions. हम उनको कॉमन डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं और हम इनको कॉमन like fractions भी कह सकते हैं. Now students, unlike fractions, the fractions with different denominators are called unlike fractions. Which fraction is greater, 2 over 3 or 5 over 9? अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? डिफरेंट. अब डिनोमिनेटर सबसे पहले हमें सेम करने होंगे. अब उन क्वेश्चन ये है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास ग्रेटर है. इसके लिए हम क्या कहेंगे कि पहले तो हमें पता है कि ये कौन सी फ्रैक्शंस है? अनलाइक फ्रैक्शंस. बोथ फ्रैक्शन डू नॉट हैव द कॉमन डिनोमिनेटर. वी कैन कंपेयर these two fractions by finding a fraction equivalent to 2 over 3. अब मैं क्या करती हूँ, मैं 2 over 3 इसको जो है इसके equivalent fraction find करूंगी that share a common denominator with 5 over 9. वो वाली equivalent fraction find करूंगी जो कि हमारे पास common denominator होगा जिसकी तरह 5 over 9 का. मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 9 आएगा जी? 3 के साथ. मैं क्या करती हूँ, इस फ्रैक्शन को 2 over 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 2 multiply 3 over 3 multiply 3. तो मेरे पास क्या आ गया? 6 over 9. नाउ दे बोथ आर लाइक फ्रैक्शन. सो विच वन इज द ग्रेटर? 6 over 9 and 5 over 9 have a common denominator, so we can compare their numerators. To find 6 over 9 is a greater than 5 over 9. अब देखें इनके न्यूमिनेटर, एक में 6 है और एक में 5 है. तो आपको पता है कि जो 6 है वो ग्रेटर होता है. सो इट्स मीन 6 over 9 इज अ ग्रेटर. 6 over 9 ग्रेटर मीन्स 2 over 3 हमारे पास क्या है? ग्रेटर फ्रैक्शन है. मिक्स नंबर. नाउ व्हाट्स द मिक्स नंबर्स? A mixed number is made up of a whole number and a fraction. मिक्स नंबर हमारे पास क्या होता है कि वो होल नंबर और फ्रैक्शन से मिलके बनता है. आप मिक्स नंबर को इस तरह से लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ अ मिक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. मिक्स नंबर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी. आप एग्जाम्पल लेते हैं हम एक. फॉर एग्जाम्पल 6 whole 2 over 5 इज अ मिक्स नंबर. Example. Now students, open page number 80. On page number 80 you have an example. Bubbles and Twinkle shared 3 similar pies equally. How many pies will each of them get? Bubble और Twinkle दो हैं, इन्होंने 3 जो pies हैं एक जैसी सेम वो उन्होंने शेयर की हैं इक्वली, मतलब हर किसी को दोनों को सेम इक्वल क्वांटिटी मिली है. How many pies will each of them get?
कितनी पाए जो हैं वो दोनों को मिलेंगी। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये 3 पाए हो गई, एक एक तो उनको पूरी जाएगी, लेकिन ये जो ये वाली है सेंटर वाली, ये क्या होगी, हाफ जाएगी, हाफ बबल को मिलेगी और हाफ ट्विंकल को मिलेगी। तो मतलब मेरे पास क्या, ये मेरे पास 1 एंड हाफ, ये मेरे पास ट्विंकल बबल्स का पार्ट आ गया, और ये मेरे पास, और ये वाला जो हाफ होगा वो मेरे पास आ जाएगा, और ये नेक्स्ट फुल 1, तो ये मेरे पास ट्विंकल की आ जाएगी। तो अब इनको मैं कैसे लिखूंगी मिक्स नंबर में, वी कैन कट आउट वन ऑफ द पाइज इनटू 2 हाफ्स so that each person gets a half of that pie. We can also say that they each get 1/2 pies. अब वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास 3 पाए थी, आपने एक एक तो पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लेकिन जो एक पाई थी उसको आपने 2 हाफ्स में डिवाइड किया, और 2 हाफ्स में डिवाइड किया तो एक पर्सन को जो है आपने हाफ पाई दी है, उस पाई की जो थर्ड वाली थी, जो आपके पास हाफ है, जो आपने एक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आप कह सकते हैं कि एक पर्सन को कितनी मिली है, 1, एक पूरी पाई मिली है और एक हाफ पाई मिली है। सो इन 1/2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स नंबर। ये हमारे पास एग्जाम्पल है मिक्स नंबर की। इसमें ये हमारे पास 1/2, इसमें जो 1 है वो हमारे पास होल नंबर होगा, और जो ये 1/2 है ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन। और आप पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है नंबर, होल नंबर एंड फ्रैक्शन का। Now students open page number 80. On page number 80 you have an example. Ali has 4 similar cakes. He eats 1/8 of one of the cake. अली के पास 4 एक जैसे केक हैं और उसने एक केक का 1/8 पार्ट जो है वो खा लिया है। अब पहले तो हम 4 केक बना लेंगे, और एक केक में से उसने क्या किया, 1/8। अगर मैं इसके 8 पार्ट्स करूं तो उसका ये एक पार्ट जो है वो अली ने ईट कर लिए, तो बाकी आपने बताना है कि कितना बचेगा। ये हमारे पास 3 होल, ये हमारे पास 7/8 मीन्स कि एक पार्ट उसने खा लिया, तो पीछे कितने 7 बचे, कितने पार्ट्स बचेंगे, 7/8 मीन्स कि वो उसने खाए नहीं है। There are 3 whole 7 over cakes left. 3 whole, 3 तो पूरे थे, 7/8 एक पार्ट उसने खा लिया है, तो 8 में से अगर मैं 1 निकालती हूँ तो मेरे पास 7/8 बच जाएगा। 8 टोटल पार्ट्स थे उसके और 7 रिमेनिंग। So this is the answer is in mixed form, 3 wholes and 7 eighths. Now students open page number 81. On page number 81 you have example. We can show mixed numbers to on a number line. Look at the number line below. What mixed number do A and B represents? अब आपके पास एक नंबर लाइन है, वो कह रहे हैं कि हम मिक्स नंबर को नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। ये अभी एक हमारे पास नंबर लाइन है, कुछ पार्ट्स में वो डिवाइड हुई है। अब उन्होंने कहा कि ये उसके पार्ट्स हैं, स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से, 0 के बाद आपके पास हाफ आएगा, फिर 1, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास हाफ आता है, 1 एंड 2 के दरमियान में हमारे पास 1 एंड हाफ आएगा, 1 होल 1/2, 2 और 3 के दरमियान में 2 होल 1/2, 3, अब 3 और 4 के दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, आपने ये फाइंड करना है। इसको हमने ए का नाम दे दिया और इसको हमने बी का नाम दे दिया। In the number line above, each interval is divided into 2 parts, 1 divided by 2, it's 1/2. आपको पता है कि जो एक इंटरवल है वो उन्होंने किस पे डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में, मतलब ये देखिए 1 और 2, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक पार्ट किसके इक्वल होगा, 1/2 की। When we move from one marking to the next, we are counting on in 1/2s. अगर हम एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग में जा रहे हैं तो मैं 1/2 काउंट कर रही हूँ। जैसा यहाँ पे मेरे पास 1 था, 1 में ये नेक्स्ट मार्किंग में जाऊंगी तो हाफ को काउंट करूंगी, तो 1 होल 1/2, फिर 2 पूरा आ जाएगा, हाफ अंदर आएगा तो वो 2 पूरा बन जाएगा। इसी तरह से सो ए रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 3 था, 3 में हमने हाफ ऐड करना है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 होल 1/2, और बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे पहले 4 है तो 4 में हाफ ऐड करेंगे तो 4 होल 1/2। Now can you write 5/10 in its simplest form? This question is on page number 82.
सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास कैसे आती है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। मैं क्या करती हूँ कि मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों के जो होगा उसको डिवाइड करूंगी। इन दिस केस द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। अगर हम देखें इस केस में हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5। 5 कैसे आया कि देखें 5 जो है ये इस पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 जो है वो इस पे डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 2 से करते हैं तो 2 10 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हमने 5 से डिवाइड करेंगे। 5 divided by 5 over 10 divided by 5, it gives you the answer 1/2. So this is the simplest form. What is the simplest form of 2 whole 4/6? This question is on page number 82. 2 wholes, ये आपके पास पूरे 2 wholes हैं और ये आपके पास 4/6। 4/6 मतलब ये वाले पार्ट हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आपके पास 2 होल 4/6 था, ठीक है। इसमें आपके पास 2 होल, आप ये 4/6 को सिंप्लीफाई करें, मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 होल 2/3। मतलब 2 होल अब वो 6 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। 3 पार्ट्स में डिवाइड, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका कट होगा, मतलब इसमें एरो लगा हुआ है, ये इंक्लूड नहीं है, बाकी 2 इंक्लूड होंगे। एरोज वाले पार्ट आप इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके अलावा काउंट करें 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 6। इसी तरह से 1 2 2 आउट ऑफ 3। सो वी डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ऑफ 4/6 बाय 2। मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 4/6 को किससे डिवाइड कर दिए, 2 से। तो 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 2/3 आ गया। सो 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव अ होमवर्क on page number 78. Do question number 1, A and B both part practice zone on your book. On page number 82 and 83, do question number 2, question number 3 part A and B, question number 4 on your books. Now students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.